کرے تو کیا وہ فرد کی حقدار ہو سکتی ہے یا میں جنت کا حقدار ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ اگر سرگ اور نرگ ہے تو کون دیکھا ہے؟ میں ایک نان مسلم ہو کے کیا سر مکہ حج کرنے جا سکتا ہوں؟ کیا اسلام دھرم پنرجنم کو مانتی ہے؟ دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا؟ کس دھرم کو ماننے سے منش کا کلیان ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے آپ سنتشٹ پوروک جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھرم قبول کروں گا۔ میری درخواست ہے کہ اب غیر مسلمان بھائی اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ان کے سوال کا جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ Sir, good evening. Myself, Amitava Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal. And I am working in a pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months. And someone give me the Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है. सर मैंने पढ़ा. Sir, I am having some interest after reading the Quran. But sir, please help me out that how can I, sir, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन सर। بھائی کا سوال ہے کہ 6 مہینے پہلے انہیں اسلام کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ 6 مہینے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے اسے پیش کیا اور 6 مہینے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسن ہوا۔ وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آ سکے، اسلام کے قریب آ سکے اور سمجھ سکے۔ بھائی صاحب، جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے؟ یس سر، آبویسلی سر، میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں، 3 حدیث تک میں نے پڑھا ہوں، 3 جز، 3 بارے لاسٹ البقرہ جو ہے سر، دا کاؤ بول کے، وہ میں نے لاسٹ پورا پڑھے۔ ہاں سر۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھے، جو ماشاءاللہ 2 جز سے زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ اکیلا سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا سورہ ہے۔ یس سر۔ ماشاءاللہ 286 اس میں آیتیں ہیں اور 2 سے زیادہ پارے ہیں اس میں، الحمدللہ۔ تو تقریباً اپنے 1/15 قرآن، یعنی 7% قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے۔ ہاں سر۔ میری درخواست ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ آپ نے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا، غلط لگا یا کیسا لگا؟ نہیں سر، جو سمجھ میں آیا وہ تو سبھی صحیح لگا۔ تو آپ کو سورہ بقرہ میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا، بس پڑھا ہی، کچھ یاد، مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا، مطلب 1% میرے کو سمجھ میں آیا، لیکن میں نے پڑھا پورا، کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا، بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا، لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے، مطلب آئی کین گو تھرو دا قرآن وداؤٹ واچنگ دیٹ قرآن۔ بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب آئے، انہیں پڑھا لیکن 1% ان کے نزدیک وہ سمجھے اور یاد رکھے۔ بھائی صاحب، قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن، جس طریقے سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن۔ آپ نے جب سورہ بقرہ کیا تو 100% سورہ بقرہ کو تذکر قرآن کیا۔ تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا، لیکن تدبر کرنا مشکل ہے۔ جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگے گا، لیکن تذکر قرآن تقریباً 7% آپ نے پورا کیا، 7% قرآن کا آپ نے پورا کیا، اور جیسے پڑھتے رہیں گے، جیسے معنی جانتے رہیں گے، اس کے اوپر تدبر کریں گے، اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا۔ میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں، اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے سورہ بقرہ کے لیے صرف 8 سال لیے، 8 سال، صرف 8 سال تک سمجھنے میں، کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا۔ تو آپ تو صرف 6 مہینے سے شروع کیے، ہاں سر۔ 8 سال لیے، تو یہ کہنا، لیکن قرآن مجید کا 0.1% بھی آپ کے ذہن میں کیا کافی ہے، 100% جانا ضروری نہیں ہے، 0.1% بھی سورہ بقرہ کا ذہن میں گیا، الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی۔ میری درخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم میسج ہے جو قرآن کا، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس سر۔ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں ہے؟ نہیں سر۔ آپ مانتے خدا کا عکس نہیں؟
आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर, आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत गलत है, परस्ती गलत है सर. गलत है. मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते. नाम तो 33 से ज्यादा है. 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में जो लोग कहते हैं. लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना. आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू ताला के सबसे बेहतरीन नाम है. लेकिन नाम सही होना चाहिए. इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर. गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए. और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए. तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए. ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो. Yes, sir. इट शुड बी अ करेक्ट नेम. तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के. तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं. लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है. जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप. नहीं सर. आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है Yes, sir. जिसके मानी है अक्स, That's, पिक्चर, yes, sir. फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू. तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं. तो ये आप इस बात को मानते क्या? नहीं पूछता हूं मैं. Yes, sir. आप मानते हैं कि भगवान there का is कोई no अक्स नहीं, structure. कोई स्टैच्यू नहीं. Yes. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक. आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes, sir. Prophet. आप मानते? Yes, sir. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes, sir. तो आप मानते खुदा एक है, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. Yes, sir. आप मानते. तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में. इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है. अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते. बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में. लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते. जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक. हाँ, बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ते. तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. तो ये अगर आप 2 चीज मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते. यस सर. तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर. हो चुके हैं, माशाअल्लाह. चाहते क्या कलमा पढ़े? सर. आप चाहते क्या कलमा पढ़े? सर यस. आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा. सर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा. प्रोनाउंसिएशन, तर्जुमा मीन समझ गए काफी है. प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए. मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है. यस सर. मेन चीज है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा. लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है. एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली. मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ.
पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर, आप अपने दिल से करना चाहते हैं? Yes, sir. आप पे कोई भी दबाव, नहीं ऐसा कोई भी प्रेशर, नहीं सर, ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर, ऐसा हाँ? तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, भी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा तीसरा चौथा पांचवा जुज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए, अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही सर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया। आ गया ना माशाल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं, बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम सुकांत चंद्र है, मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है और वो खलीफा
जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। आते हैं माइक नंबर 1 की तरफ। माइक नंबर 1 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 1 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के 10 लक्षण होते 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष। ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपलसरी, करना ही चाहिए, हर मुसलमान को फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है
کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے, جو انکریج ہے, جو سنت ہے, اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے, جو چیز اوائڈیبل ہے, ڈسکریجڈ ہے, اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ, اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دا آنسر کوشچن. بھائی صاحب, آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے, اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چیلنج ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا, تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات 9:45 بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھا وہاں پر, تو میں نے دیکھتے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا. بھائی صاحب, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. مانتے خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے خدا کا کوئی عکس ہے؟ نہیں سر. خدا کا عکس نہیں. خدا کی کوئی مورتی ہے؟ نہیں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ جی سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. آپ مانتے؟ تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک. جی سر, کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کلکی اوتار کے بارے میں ورنن کیے تھے. جی ہاں. تو ہم لوگ کی کلکی پران, رگ وید, کلکی پران میں اور رگ وید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل, تو میں بھی نہیں جانتا تھا ایسے بارے میں. تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر کہ خدا ایک ہے؟ جی سر. اور خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمک ہونے کے لیے, منیمم. جی سر. منیمم پاسنگ مارک. پاسنگ مارک یہ ہے جسٹ پاس. بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے؟ جی سر. آپ چاہتے ہیں؟ جی سر. کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نو سر. واقعی نہیں, زبردستی نہیں کر رہے نا؟ نہیں سر. آپ میری محبت میں آ گئے, میری محبت نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھینچ لایا, کہ میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا؟ نو سر. آپ اپنے من سے جی سر. اور آپ کے دماغ سے ہوش و آواز میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. جی سر. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ, آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے. اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور دھارمک بنیں, میری التجا ہے آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, وہ زبان میں جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے, ہندی میں تو ہندی میں پڑھیے, بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھیے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے. اور کوئی اگر آپ کو شک اور شبہ ہے تو انشاءاللہ آپ ای میل لکھ سکتے ہیں zakir@irf.net میں. تھینک یو سر. جزاک اللہ, شکریہ. بہت بہت شکریہ. بين